Hello students, this is 7th lecture on topic magnetic effect of electric current. In last lecture, we discussed about the magnetic field pattern due to straight conductor carrying the electric current and due to circular coil carrying the electric current. And we also discussed about the Biot-Savart's law. तो Biot-Savart's law क्या था? कर्सर पे ध्यान दो, ये पार्ट था dB इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर, यानी magnitude of magnetic field of induction at a point due to conductor carrying the electric current is directly proportional to current through the conductor, directly proportional to the length element due to which you are finding the magnetic field at that point. Sine of angle between the length element and the segment joining the midpoint of length element and point of observation, and inversely proportional to square of the distance between length element and the point of observation. मतलब जैसे देखो, वापस वो डायग्राम में आपको एक बार दिखा देता हूँ. ये देखो, ये कंडक्टर है कैरिंग द इलेक्ट्रिक करंट. तो एट पॉइंट P, what is the magnitude of magnetic field of induction is directly proportional to current passing through this conductor I, directly proportional to length element AB, because of which we are finding the magnetic field at P, directly proportional to sine of angle between the current element IDL and the segment joining the midpoint of length element and point of observation, and inversely proportional to square of the distance between midpoint of the length element and point of observation. Now in today's lecture, let us make the use of this mathematical formula and find magnetic field of induction with the different applications. पहले एकदम सिंपल एप्लीकेशन लेते हैं, फिर डिफिकल्ट की तरफ जाएंगे. ये सेकंड एप्लीकेशन है, सिंपलेस्ट एप्लीकेशन है. एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर आर्क कैरिंग द इलेक्ट्रिक करंट. तो डायग्राम में देखो, ये सर्कुलर आर्क है. दिस इज द सर्कुलर आर्क. फॉर दिस सर्कुलर आर्क, this is the center of curvature and this is the radius of curvature. ये circular arc है. It is carrying the current in anti-clockwise direction. This circular arc has a radius of curvature r, and this is the center of curvature. And in this expression, we are finding the magnetic field of induction at the center of this circular arc. मुझे यहाँ find out करना है, ठीक है. तो पहला डायरेक्शन फाइंड आउट कर लेंगे. डायरेक्शन कैसे आएगा? ये सर्कुलर कॉइल का पार्ट है, तो यूज द राइट हैंड. 4 fingers of right hand will follow this arc in the direction of current. मतलब 4 fingers ऐसे फॉलो करेंगे राइट हैंड के. तो थंब कैसे आएगा? परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर एंड आउटवर्ड आएगा. तो एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन रहेगा वो कैसे रहेगा? नॉर्मली आउटवर्ड, यानी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर एंड आउटवर्ड रहेगा एट दिस पॉइंट. ठीक है, डायरेक्शन तो मिल गया. एट दिस पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड इज नॉर्मली आउटवर्ड. जो आप डॉट इन सर्कल दिखा सकते हो. एक हो गया. अभी हमें यहाँ मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है. तो टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड क्या करेंगे? एक स्मॉल एलिमेंट लेंगे. ये सर्कुलर पार्ट है. लेट मी टेक स्मॉल एलिमेंट ऑफ आर्क. इट इज dl. करंट पासिंग थ्रू इट इज I. तो मैं इसको करंट एलिमेंट बोलेगा I dl. दिस इज द करंट एलिमेंट I dl. From current element I dl, how far the point
is present where magnetic field of induction is expected, तो वो डिस्टेंस है कैपिटल आर. ये तो पोजीशन वेक्टर है. तो बिकॉज ऑफ करंट एलिमेंट आइडियल एट ए डिस्टेंस आर, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन? सिंपल है, वो फॉर्मूला रहेगा, ये देखो, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, dB इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर. यहां थीटा क्या है? एंगल बिटवीन करंट एलिमेंट एंड सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट. मतलब ये सेगमेंट है ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड लेंथ एलिमेंट, एंड ये करंट एलिमेंट. इन दोनों में एंगल कितना है? अकॉर्डिंग टू बायोट सावर्ट्स लॉ ये 90 डिग्री. तो ये साइन 90 डिग्री हो गया 1. सो लेट मी पुट 1 फॉर साइन 90 डिग्री एंड रीराइट दिस इक्वेशन. तो मैंने ऐसे लिखा, म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई डीएल अपॉन आर स्क्वायर. नाउ लुक एट अ डायग्राम. अगर मैं ये एलिमेंट यहां से जगह यहां पे लेता, अगर मैं ये लेंथ एलिमेंट का प्लेस आगे शिफ्ट करूं, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, तो डिस्कशन विल नॉट चेंज, इवन फॉर्मूला विल नॉट चेंज. लेकिन ये सब एलिमेंट डीएल 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 मिलके एक आर्क बना रहे. अगर कंटिन्यू करेंगे तो एक सर्कल भी मिल जाएगा. तो हाउ टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर बिकॉज ऑफ ऑल द लेंथ एलिमेंट? तो किसी एक लेंथ एलिमेंट की वजह से जो है उसको इंटीग्रेट कर दो. यह है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन ड्यू टू लेंथ एलिमेंट. तो बिकॉज ऑफ ऑल द लेंथ एलिमेंट ये हो गया टोटल मैग्नेटिक फील्ड. इंटीग्रेशन dB म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई डीएल अपॉन आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन. इसमें देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर कांस्टेंट है, आई कांस्टेंट है, तो लेट मी राइट देम आउटसाइड द इंटीग्रेशन. तो इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचेगा? डीएल बचेगा. इंटीग्रेशन साइन क्या बचेगा? डीएल. ठीक है. तो इंटीग्रेशन डीएल क्या होगा? देखो अभी ये आर्क है, बाय दिस आर्क दिस इज द एंगल सबटेंडेड हियर. अगर मैं छोटा सा हिस्सा लूं, ये डीएल है, by the arc length dl, what is the angle subtended here is d theta. तो arc length और radius में फॉर्मूला आपको पता है. If angle is expressed in radian, then arc upon radius is that angle. तो dl ये arc length लिया मैंने छोटा सा. By arc length dl, what is the angle subtended at the center is d theta. तो मैं d theta is equal to dl upon r लिख सकता. सर्कुलर मोशन पढ़ा है तो ये बेटर नोटिस. एंगल इन रेडियन इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस. तो डी थीटा इज डीएल अपॉन आर. ध्यान रहे ये एंगल रेडियन में ही लेना है, डिग्री में गए तो गए मार्क पूरे. तो मैंने ये फॉर्मूला लिखा, म्यू 0 अपॉन 4 पाई, आई कांस्टेंट था बाहर लिया, आर स्क्वायर कांस्टेंट था बाहर लिया. यहाँ पे क्या बचा था? इंटीग्रेशन डीएल. अभी सब स्टेप्स लिखे नहीं जाते ना, तो मैंने ये डीएल का रिप्लेसमेंट लिया आर डी थीटा. ये देखो म्यू 0 आई अपॉन 4 पाई, और मैंने डीएल को रिप्लेस किया आर डी थीटा से अपॉन आर स्क्वायर है जैसे ही रखा है. ये आर एक कम हो गया, तो म्यू 0 आई अपॉन 4 पाई बाहर आ गया. ये इंटीग्रेशन डी थीटा, इट इज इंटीग्रेशन डी थीटा. तो इंटीग्रेशन डी थीटा का इंटीग्रेशन कितना रहेगा? अगर मैं ये इतना आर्क ले रहा हूँ, if I am taking this arc, then by this arc what is the angle subtended here is what? Theta है. तो substitute करते हैं. तो B is equal to mu 0 upon 4 pi I upon R, and this angle जो arc length हम लोगों ने discussion के लिए उसका angle है theta. So this is the expression for magnetic field of induction at the center of circular arc carrying the electric current. Since circular arc is carrying the current in anti-clockwise direction, so according to right hand loop rule, if current is followed by 4 fingers of right hand, thumb is kept outstretched. तो outstretched thumb रहेगा पेपर को परपेंडिकुलर और आउटवर्ड. तो यह मैग्नेटिक फील्ड रहेगा नॉर्मली आउट. ये होगा. तो ये एक्सप्रेशन आपको करना है. मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन at the center of circular arc carrying the electric current.
क्लियर? अब इसके अलग अलग केसेस है, अलग अलग केसेस एडिशनल 1 मार्क के लिए आ सकते हैं, मतलब इक्वेशन 3 के बाद एक्सटेंशन, तो 1 मार्क भी बढ़ेगा। एज्यूम करो कि जो आर्क है वो क्वार्टर सर्कुलर आर्क है। अगर वो आर्क क्वार्टर सर्कल है तो क्वार्टर सर्कमफरेंस लेना पड़ेगा। बट बाय क्वार्टर सर्कमफरेंस व्हाट इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर? वो रहेगा 90 डिग्री। By quarter circumference, what is the angle subtended at the center is what? 90 degree. लेकिन ध्यान रहे 90 डिग्री नहीं लेने का। I am repeatedly saying you do not take the angle in degree. One must write the angle in radian. नहीं तो गलत कर दोगे। तो क्वार्टर सर्कुलर आर्क ने एंगल कितना सबटेंड किया होगा? π/2। तो मैंने π/2 सब्स्टिट्यूट किया, तो ये फॉर्मूला आ गया, पाई वैल्यू कैंसिल हो गया, ये हो गया 8। So this is the magnetic field of induction at the center of quarter circle या quarter circular arc carrying the current. अगर हम लोगों ने आर्क को सेमी सर्कल लिया होता तो by the semicircular coil या arc, what is the angle subtended at the center? It will be pi radian. 180 डिग्री नहीं लेना है, तो अगर मैं ये पाई रेडियन सब्स्टिट्यूट करूँ तो पाई वैल्यू गेट कैंसल, म्यू 0 I अपॉन 4 पाई। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ सेमी सर्कुलर आर्क कैरिंग द इलेक्ट्रिक। अगर हम लोग एक कंप्लीट सर्कल लेते, एक ही टर्न वाला सिंगल टर्न सर्कुलर कॉइल लेते, कंप्लीट सर्कल, तो बाय द कंप्लीट सर्कमफरेंस व्हाट इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर इज 360 डिग्री। Though it is 360 degree, but you have to write down 2 pi radian. तो 2 pi radian लिखा, ये pi वैल्यू कैंसिल हो गया, ये रिड्यूस हो गया, तो म्यू 0 I अपॉन 2r। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल हैविंग सिंगल टर्न एंड एट इट्स सेंटर। ठीक है? अगर ऐसे नंबर ऑफ टर्न्स बहुत ज्यादा रहेंगे तो कुछ नहीं, all the turns, let number of turns are n there, all the turns are carrying the electric current in the same direction. So because of each circular coil carrying the electric current at the center, जो भी मैग्नेटिक फील्ड रहेगा वो सब एक ही डायरेक्शन में रहेगा। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड कैसे फाइंड आउट करोगे? ये जो सिंगल टर्न की वजह से इसको कैपिटल N से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल। तो बिकॉज ऑफ एन टर्न्स, बी कितना हो जाएगा? बिकॉज ऑफ 1 टर्न इंटू नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल है, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा, ऐसे भी ले सकते हैं, राइट? या तो मैंने एन इंट्रोड्यूस कर दिया क्योंकि सभी मैग्नेटिक फील्ड एडिटिव रहेगा, तो एन निकाल दोगे तो ये ओरिजिनल फॉर्मूला था, एन लोगे तो ये एन टर्न्स के लिए फॉर्मूला, ऐसे भी जा सकते हैं। या तो मैंने बोला एक टर्न के लिए कितना मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ टर्न्स लेना, क्योंकि सभी टर्न्स में से पास होने वाला करंट या तो क्लॉकवाइज ही रहेगा या तो एंटी क्लॉकवाइज रहेगा। तो एट द सेंटर मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ ईच सिंगल टर्न्स कैन बी एडेड अलजेब्रिकली। दिस इज हाउ। Okay, in the next lecture we will discuss the second application of Biot-Savart's law. Thank you.